Good evening, everyone. I am Shweta Goyal from An Academy, and I teaches economics on An Academy platform. But here, our special class is on Indian polity, and we will be discussing the topic of local self-government. Since your prelim is almost 20 days left for your prelims, even lesser than that. So I am trying to bringing more topics in free classes, so that it will help you in revise your prelims as prelims preparation notes and all, and along with that it will also help to do those students who have not taken any subscription on Unacademy. So this is a free initiative from the Unacademy to help each and every student who are preparing for civil services and specifically appearing this year on 10th of October. So the today's topic will be to discuss the local self-government under Indian polity, and in next 1 hour we will be completing all the facts, all the concepts related to the local self-government which is necessary for your prelims preparation. Good evening, Sumana. अच्छा, हमने पिछली क्लास में प्रेसिडेंट डिस्कस किया था. डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट? उससे पहले हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिस्कस कर चुके हैं. डू यू हैव एनी डाउट इन एनीथिंग? ठीक है. So okay, thank you. I am assuming that you don't have any doubt, so we can begin with the Indian polity. And if you are new to Unacademy, please do like, share, and subscribe the Unacademy Unlock UPSC channel, and also press the notification bell icon so that you will be receiving regular updates from the YouTube whenever any educator comes online on the YouTube. ठीक है. So that's the okay, Shripat Raja. Thank you. So that's one thing. And if you want to join me on Telegram, if you want to connect me more frequently, then you can join my Telegram group, which is the Economics Optional by Shweta Goyal, and or my Telegram channel, which is the Economics by Shweta. So you can join anyone. You can join me there on Telegram as well. And if you want to enroll in any Unacademy course in any subscription, so you can enroll in any subscription, any plan using my code, which is the Shweta G10. After using this code, you will be getting 10% discount on Unacademy subscription. ठीक है, 10% का अगर extra discount चाहिए, so use this code. This will give you extra 10% discount. ठीक है, so that's one and two thing. If you want to enroll or not, that's your choice. If you want to enroll, my code is this. You can also follow me on Unacademy. We more frequently meet there. My name is Shweta Goyal. So let's begin. So the topic for today's class is the local self-government. We will be discussing नो प्रॉब्लम श्रीपद राजा. आप एक बार चेक कर लेना इफ यू हैव एनी डाउट. सो आई थिंक we will meet on 22, that is day after tomorrow. We will discuss the topic of preamble, and at that time you can ask your doubt in case if you would have any. ठीक है. So today we are discussing the local self government. As you know me, you are regular to me. So अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है. जब भी मैं कोई नया टॉपिक शुरू करती हूँ तो आई फर्स्ट डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ती हूँ.
पढ़ाती हूँ। सो मैं आपको आज भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या करेंगे हम लोग, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी कमिटीज आई, किन किन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। देन आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। बेसिकली आई विल बी फॉलोइंग दी मेथड ऑफ लक्ष्मीकांत, सो दैट आप मेरी क्लास के बाद जब लक्ष्मीकांत पढ़ो, so it will seems easier to you than the before this class. So that's the purpose. So we will move ahead as per the pattern mentioned in the Lakshmika. So first we will be discussing about the historical background of the local self government. कैसे आई, कब बनी, कब बनाई गई, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड करा, क्या क्या चीजें हुई। तो first we will discuss that and after that I will move ahead. So सबसे पहले we are discussing the historical aspect of the local self government. तो आपको कुछ कमिटीज के नाम याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है that you have to arrange them in chronological order, कि कौन सी कमेटी कब आई, you have to arrange them in chronological order and that's then you have to arrange them in a chronological order. So that's why you have to remember the name of these committees. You have to remember the name of these committees. बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज द फर्स्ट कमेटी जो 1957 में आई थी एंड पहली ऐसी कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था कि भाई हमारे पास पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सो बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी जो 1957 में आई थी। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं था इंडिपेंडेंस के बाद, ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन के 7 इयर्स बाद पहली कमेटी थी जिसने 1957 में कहा था कि हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि 3 टायर, देखो हर एक का ये इंपॉर्टेंट है कि किसने कितने टायर का स्ट्रक्चर बोला। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर प्रमोट करा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर प्रमोट करा। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास ग्राम पंचायत होनी चाहिए, देन हमारे पास पंचायत समिति होनी चाहिए, एंड देन हमारे पास जिला परिषद होना चाहिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ 6-7 रिकमेंडेशन दी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, 6-7 रिकमेंडेशन दी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। एंड आफ्टर दैट इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो एक प्लानिंग कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो नेशनल डेवलपमेंट कमीशन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। दे हैव एक्सेप्टेड दिस नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, लेकिन उन्होंने ना बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं एक्सेप्ट किया। जैसे इन्होंने बोला था 3 टायर, इन्होंने बोला कि स्टेट्स की अपनी मर्जी है कि वो कब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, 2 टायर चाहते हैं, 3 टायर चाहते हैं, वो कैसा चाहते हैं, दैट्स अप टू द स्टेट। स्टेट्स को चॉइस दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और कोई भी सेंट्रल लेवल से ऐसा नहीं आएगा कि नहीं तुम्हें इसी वे में कंडक्ट करना है। दे हैव गिवन यू कंप्लीट फ्रीडम, आप कैसे भी अपने स्टेट में, इंडिविजुअल स्टेट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हो। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट, Rajasthan was the first state. Rajasthan was the first state who established पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश करा था 1959 में। राजस्थान was the first state who established the पंचायती राज सिस्टम in India and in 1959। उसके बाद काफी स्टेट्स आए, सबने अपने यहाँ पे अपने तरीके से बनाया, किसी ने 2 टायर बनाया, किसी ने 3 टियर बनाया, सबकी अपनी मर्जी थी। बट बलवंत राय मेहता वॉज दी फर्स्ट कमेटी जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम के बारे में बोला था, और जिनकी रिकमेंडेशन फॉलो करके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने स्टेट पे अलाउ कर दिया था कि भाई ठीक है तुम अपने स्टेट में अपनी मर्जी से बना सकते हो। सो दैट वॉज दी फर्स्ट कमेटी। नाउ द सेकेंड कमेटी इज अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो थी वो 1977 में आई थी आफ्टर 20 ईयर्स। बेसिकली इसलिए आई थी कि बेसिकली हम ये तो देखें कि कितना प्रोसेस किया है स्टेट्स ने,
क्या वो सही में वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी। आई वोंट सजेस्ट यू टू मग अप ऑल दी रिकमेंडेशन। आपको पूरी रिकमेंडेशन मग अप करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको बस ये पता होने चाहिए कौन सी कमेटी किस ईयर में आई है, सो दैट इफ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, सो दैट्स द वन थिंग। सेकंड कमेटी जो थी वो अशोक राय मेहता कमेटी थी। एंड थर्ड कमेटी वो जीवी के राव कमेटी जो 1985 में आई थी। ठीक है, जीवी के राव कमेटी जो थी वो 1985 में आई थी। एंड द लास्ट वन इज योर एलएम सिंघवी कमेटी विच केम इनटू द 1986। लास्ट कमेटी जो थी वो एलएम सिंघवी कमेटी थी। तो BAGL, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, BAGL। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक, GKRB राव, एलएम सिंघवी। ये 1986 में थी, ये 85 में थी, ये 77 में थी, एंड दिस वाज इन 1957। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, तो अब इसके बाद क्या हुआ, 1989 में, 1989 में जब हमारे पास राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, when we had राजीव गांधी गवर्नमेंट, तो एक बिल पास, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, मतलब एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करते हैं। तो जो ये बिल था ये राज्यसभा में, लोकसभा में तो पास हो गया, इट वॉज पास बाय लोकसभा, बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। नाउ यू विल आस्किंग मैम राज्यसभा ने क्यों रिजेक्ट किया। सो राज्यसभा के रिजेक्ट करने का रीजन ये था कि जो राज्यसभा है उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब जब अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाओगे तो आप स्टेट की कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दोगे। whenever you will create any local level government, so you will be transferring powers from state governments to local level governments। तो भाई जब मुझे, अगर मैं सपोज मैं अगर किंग हूं और मुझे अपनी पावर डाइल्यूट करनी पड़े, शेयर करनी पड़े किसी के साथ, तो मैं क्यों सपोर्ट करूंगी उस चीज को। दैट वाज द रीजन राज्यसभा ने इसको अपोज किया, राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बिल तो इंट्रोड्यूस करा, लोकसभा ने पास कर दिया, बट जो बिल था वो राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया। इट वाज रिजेक्टेड इन राज्यसभा बिकॉज जो ऑपोजिशन था उन्होंने उनकी नहीं सुनी। देन अंडर आपकी वीपी सिंह गवर्नमेंट 1919 में, यू हैड वीपी सिंह गवर्नमेंट। ठीक है, ये बिल लेकर तो आए, जैसे राजीव गांधी लेकर आए थे तो इन्होंने लोकसभा में पास करा लिया था, राज्यसभा में नहीं, रिजेक्ट हो गया था। जब वीपी सिंह गवर्नमेंट बिल लेकर आई तो ये किसी भी हाउस में पास नहीं हो पाया, नॉट पास बाय एनी वन, नॉट पास बाय एनी हाउस, क्योंकि बिल को पास करने से पहले ही उनकी जो सरकार थी वो गिर गई थी। ठीक है, उनकी जो सरकार थी वो गिर गई थी, किसी भी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी, तो बहुत शॉर्ट टर्म में होने की वजह से बिल पास होने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई थी। सो ये 1989 1990 में दो बार कोशिश की गई कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दें, हम ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर दें, एक सिमिलर प्रोविजन बना दें, लेकिन दोनों अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो गए। नाउ इन 1991 पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने ये बिल लेकर आए, फाइनली ये जो बिल लेकर आए, ये जो बिल थे वो दोनों के दोनों पास, दोनों तो बेसिकली 1992 में पास्ड बाय बोथ राज्यसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब 1992 में इस बिल को लेकर आई तो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ही हाउसेस थे, ये जो बिल था ये पास हो गया। एंड फाइनली 1993 से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हो गई, फाइनली 1993 से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हो गई। देखो, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट मैकेनिज्म है, मतलब दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका मेथड,
उनका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, उनका बेसिकली काम करने का तरीका, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो अगर मैं आपको लोकल गवर्नमेंट बोल रही हूँ, रूरल की बात कर रही हूँ, ग्राम सभा की बात कर रही हूँ, तो समझ जाओ वो अर्बन में वार्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन काम दोनों के सेम है। ठीक है, तो बेसिकली बोथ हैव द सेम थिंग्स, बोथ आर कॉपी टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई अभी तक का जो हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ा है वो रूरल या अर्बन दोनों के लिए सेम था। 1992 में राज्यसभा लोकसभा ने दोनों ने बिल पास कर दिया, नरसिम्हन राव गवर्नमेंट ने ये बिल पास करा के 1993 में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या किया गया? एक आपका था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक आपका था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 73rd था दैट वाज फॉर रूरल एरियाज एंड 71 वाज फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, 73rd जो था दैट वाज फॉर रूरल एरियाज, 74th जो था दैट वाज फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने ऐड किया पार्ट 19 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड पार्ट 19 एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या करा? पार्ट 19 ऐड करा है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसने पार्ट 19A ऐड करा। ठीक है, इसने क्या करा? पार्ट 9A एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो 73rd ने 19 करा, इसने 19A ऐड करा इन कॉन्स्टिट्यूशन। अदर देन दिस इट इंट्रोड्यूस्ड 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन्होंने 12th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने 12th शेड्यूल, मतलब 12 भी आएगा आपका, 11th एंड 12th दोनों शेड्यूल जो थे वो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए गए। अब जो आपका पार्ट 19 ऐड किया गया था वो आपका आर्टिकल 243 से 243O तक ऐड किया गया है, और जो आपका यहाँ पे आर्टिकल ऐड किए गए हैं वो है 243P से लेके 243ZZ तक। ठीक है, आर्टिकल 243 से 243O तक, 243A 243B ऐसे करके 243O तक आपका रूरल से डील होता है, और फिर 243P से लेके 243ZG तक आपका अर्बन से डील किया जाता है। सो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल ने इंट्रोड्यूस करी थी। क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बेसिकली आपका जो स्केड्यूल था इसके अंदर 29 आर्टिकल्स थे जिन पे अब पंचायत आर्टिकल बना सकती थी, रूल्स बना सकती थी, और आपके 74th में 18 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो यहाँ तो ये देखो, ये जो टेबल मैंने बनाया है ना, या ये जो पूरा पेज है, आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। या तो वो आपसे पूछ लेंगे सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस में आप बताओगे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GKRV राव, GKRV राव, या आपसे पूछ सकते हैं LM सिंघवी। देन आपसे बोलेंगे कि 1989 में राजीव गांधी, VP सिंह, नरसिम्हा राव। सो आपको पहले ही सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके बाद जब फाइनली 1993 में इंट्रोड्यूस हो गया, सो 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे। क्या क्या चेंजेस उन्होंने करे? पार्ट 9 एक ने ऐड करा, 9A सेकंड ने करा, 243 से 243O तक एक ने ऐड करा, 243P से लेके 243ZG तक दूसरे ने ऐड करा, 11th शेड्यूल एक ने ऐड करा, 12th शेड्यूल दूसरे ने किया। ठीक है, एंड उसके बाद 29 आर्टिकल्स ऐड करे, इधर आपने 18 आर्टिकल्स ऐड करे। सो बेसिकली ये सारी आपकी क्या चीजें आती है? 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे जो 1993 में हुए थे। दैट वाज द बेसिक अबाउट दी एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अबाउट दी
पंचायती राज सिस्टम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो बेसिक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था वो इतना ही था। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अब क्लियर है आपको? क्लियर? आगे बढ़े। अब हमें इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। मैं दोनों को साथ लेके चलूंगी, जहां पे जो डिफरेंस होगा वो बताती जाऊंगी, अदरवाइज जो चीजें सेम होंगी वो बता दूंगी, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी दी ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी दी सेलिएंट फीचर्स। अब हमें क्या करने हैं, सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करने हैं। तो देखो, सबसे पहले 3 टायर सिस्टम। जैसे बलवंत राय मेहता के हिसाब से 3 टायर सिस्टम था ना, लेकिन हर एक को छूट दी गई थी कि भाई आप अपने स्टेट में कोई भी सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया, हर एक स्टेट में एक जैसा सिस्टम होगा एंड दैट विल बी 3 टायर सिस्टम। हर एक स्टेट में सेम सिस्टम होगा एंड दैट विल बी 3 टायर सिस्टम एंड यू विल फॉर्म गवर्नमेंट ऑन 3 लेवल्स। You will be forming governments on 3 levels. सबसे लोअर लेवल पे you will be having village, इस लेवल पे इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। सो बहुत क्लियरली बोला गया कि बेसिकली 3 तरीके की पंचायत बनाई जाएंगी, जिसमें आपकी विलेज लेवल पे होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे होगी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ठीक है। 3 लेवल पे आपकी गवर्नमेंट बनाई जाएंगी, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। 3 टायर सिस्टम ही फॉलो किया जाएगा। हर एक स्टेट में अलग अलग नहीं होगा, सब एक ही सिस्टम जो है वो फॉलो करेंगे। नाउ दूसरा आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा बेसिकली आपकी वोटर लिस्ट। ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जो भी आपके रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, जो भी आपके ऑल द रजिस्टर्ड, मतलब इन एन रजिस्टर्ड वोटर इन एन एरिया ऑफ पंचायत। एक पंचायत के एरिया में आपके बेसिकली कितने आपके एक पंचायत के एरिया में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सबको मिला के ग्राम सभा बोला जाता है। उन सबको मिला के क्या बोला जाता है, उन सबको मिला के ग्राम सभा बोला जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज, अब आपने बोल तो दिया कि चलो ये पोस्ट होंगी, यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली वो इलेक्ट कैसे की जाएंगी, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा? तो बेसिकली बहुत सीधे सीधे बताया गया कि बी इट विलेज लेवल, बी इट इंटरमीडिएट लेवल और बी इट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सबके जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे वो आपका विलेज लेवल हो, हर एक लेवल के जो मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, और वहां के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो लोग उनको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। सो दैट्स अबाउट द मेंबर्स। जैसे अब देखो, हर एक गवर्नमेंट का कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है। तो आपने विलेज में बोला, सपोज इस असेंबली में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, कितने भी लोग, अब उनका कोई ना कोई हेड चाहिए, कोई डायरेक्टर चाहिए, कोई ना कोई हेड चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ। आपको इन मेंबर्स के ऊपर कोई ना कोई चेयरपर्सन चाहिए, यू नीड सम चेयरपर्सन ओवर दैट।
तो देखो अब क्या होता है, जो आपका इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो आपका इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इनके चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव 100 पीपल जो वोट कर सकते हैं, यू हैव 100 वोटर्स, ठीक है। तो आपके पास 3 लेवल हैं। पहले है आपके पास विलेज, देन आपके पास है इंटरमीडिएट, देन आपके पास है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमें 10 लोग चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए और यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है, मेंबर्स। तो यही 100 पीपल पहले वोट करेंगे विलेज के लिए, फिर यही 100 पीपल वोट करेंगे मेंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट के लिए, एंड फिर यही 100 पीपल वोट करेंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। 100 पीपल इन 4, 5, 10 के लिए वोट करेंगे, ठीक है। अब हमें चूज करना है चेयरमैन, जैसे स्पीकर होता है लोकसभा का, ऐसे ही हमें यहाँ का भी चेयरमैन चूज करना है। तो जब चेयरमैन चूज करने की बारी आएगी, तो जो इंटरमीडिएट लेवल का चेयरपर्सन होगा उसे कौन चुनेगा, उसे चुनेंगे जो विलेज के, मतलब जो बेसिकली लोगों ने इन्हें इलेक्ट कर दिया, अब ये लोग मिलके ये अपना चेयरपर्सन चूज कर लेंगे। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन कौन चूज करेगा, उनके बिलो वाले, मतलब जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वो अपने में से उसका चेयरपर्सन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 लोग इलेक्ट हो गए, अब ये 4 लोग आपस में से एक चेयरमैन चुन लेंगे। ये 5 लोग इलेक्ट हो गए, 5 में से एक चेयरपर्सन चूज कर लेंगे। और जो आपका विलेज है, जो सबसे नीचे का लेवल है, उसका चेयरमैन उस तरीके से चुना जाएगा जैसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी। समझ रहे हो? यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी मेंबर्स हैं तीनों लेवल पे, वो सारे मेंबर्स तो डायरेक्टली लोग ही चुनेंगे, ठीक है। अब हर एक लेवल पे हमें एक चेयरपर्सन चाहिए, एक हेड चाहिए। तो जो आपका इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, जो ये लोग आपस में से किसी एक को चुन लेंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जो विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है, वो जो चेयरपर्सन है वो उस तरीके से डिसाइड होगा जैसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी बोल सकती है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, आपस में से चुन लो, या फिर वो ये भी बोल सकती है कि चेयरमैन भी पीपल इलेक्ट करेंगे, या कुछ भी। जैसे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गाइड करेगी, वैसे इन 10 में से एक चेयरपर्सन डिसाइड होगा एज गाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ये एक ट्रिक है, छोटी सी, एक छोटा सा छुपा हुआ फीचर है जो शायद आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड इट टू यू, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और इस पे कोई गलती ना करके आओ। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिजर्वेशन। अब यहाँ पे रिजर्वेशन किस तरीके से है, तो देखो रिजर्वेशन 2 लेवल पे होगा, या तो आपका मेंबर लेवल पे होगा, या तो आपका मेंबर लेवल पे, और एक आपका होगा चेयरपर्सन लेवल पे। रिजर्वेशन मेंबर्स में भी है, चेयरपर्सन में भी है। दोनों ही जगह 1/3 जो है वो तो विमेन के लिए रिजर्व्ड है। जो मेंबर्स हैं वो भी 1/3 विमेन होने चाहिए, और जो चेयरपर्सन है वो भी 1/3 जो है वो आपकी विमेन्स होने चाहिए। विमेन्स के लिए दोनों जगह जो रिजर्वेशन है वो फिक्स्ड है, 1/3 दिया जाएगा। अब जो आपकी SC ST की पॉपुलेशन है, अब जो आपकी SC ST की पॉपुलेशन है, उनका जो रिजर्वेशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। SC ST का जो रिजर्वेशन होगा विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। समझ रहे हो? SC ST का जो रिजर्वेशन होगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, और जो विमेन्स हैं उनका तो 1/3 होगा ही होगा। समझ आ गया? समझ आ गया? इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो ये है
देखो ये तो है कंपलसरी प्रोविजन, करना ही करना है, लेकिन एक वॉलंटरी प्रोविजन भी है, ओबीसी जो कि आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो वो प्रोविजन बना सकती है, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगी, दैट इज इंडिपेंडेंट टू स्टेट, अगर वो चाहेगी तो वो क्रिएट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। समझ गए? क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट चीज आती है कि ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर, ड्यूरेशन और टेन्योर, ड्यूरेशन और टेन्योर। सो बेसिकली 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे नॉर्मल होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो ये है, देखो जब भी आपका कोई प्रेसिडेंट, कोई स्पीकर, कोई लोकसभा का मेंबर, कुछ भी, जब भी कोई वैकेंसी क्रिएट होती है ना, तो जो नया बंदा वहां पे इलेक्ट होके आता है वो पूरे 5 साल के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2000 में आए और 2005 तक हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो गई, उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें निकाल दिया, उनकी डेथ हो गई, कुछ भी रीजन हो गई, तो हमें यहाँ पे 2002 में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ा। तो जब हम नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करा, अब वो नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूरे 5 सालों के लिए रहेगा, वो 2005 में खाली नहीं कर देगा, वो पूरा 5 साल का टर्म सर्व करेगा और वो 2007 तक वही रहेगा। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है कि भाई अगर बीच में आप कुछ नया इलेक्ट करते हो तो वो पूरे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक रहता है। भाई उसकी गलती थोड़ी है उसे कि उसे बीच में आना पड़ा तो वो सिर्फ 3 साल ही रहेगा, वो अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा करता है। लेकिन इफ यू सी इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 5 साल है, अगर किसी वजह से इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, अगर किसी वजह से इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है बिफोर 5 ईयर टर्म्स, तो जो नई लोकल गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2002 में आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ 3 सालों के लिए ही आएगी, 2005 में आपको दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। दैट्स अ ट्रिक अंडर द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत विच यू शुड रिमेंबर, बिकॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है, कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर। सो क्लियर एवरीवन, कितनी ड्यूरेशन होती है, क्या चीजें होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो जो आपका मेन इलेक्शन कमीशन होता है, जो आपका मेन इलेक्शन कमीशन है, जो आपका मेन इलेक्शन कमीशन है, वो तो इलेक्शन कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो बची लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने का काम लोकल गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। सिमिलरली फाइनेंसेस, सो फाइनेंसेस के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। देखो जो आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है उसका काम क्या होता है, रिकमेंडेशन देना सेंटर और स्टेट के बीच में। अब स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में रिकमेंडेशन देने का काम है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। किसका काम है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का। तो आपके जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंसेस होंगे वो कौन बताएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करेगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होगा, सिर्फ एडवाइजरी होगा। अल्टीमेटली फाइनेंसेस के मामले में होगा वही जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, होगा वही जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब देखो हम तो 1959 से ही बोल रहे हैं कि हर एक स्टेट में अपना अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई हुई है अपने अपने तरीके से। अब आपने एकदम से बोल दिया कि भाई नहीं, हम तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे और सबका सेम रखेंगे, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएंगे। तो कुछ स्टेट में हो सकता है तो हर एक स्टेट को, ये 1993 में आया था ना, तो हर एक स्टेट को टाइम दिया गया, हर एक स्टेट को 2 साल का टाइम दिया गया कि भाई आप 2 साल का टाइम ले लो
जो भी इसमें लॉज हैं, जो भी आपके पुराने लॉज हैं, उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस कर लो और इसको यूनिफॉर्म कर लो जो हमने बनाया है उसके हिसाब से, ठीक है। जो भी हमने बनाया है उसके हिसाब से होना चाहिए। इसको हटा दो, अपने वाले को हटा दो, और फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट बनी हुई है, लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उसका टेन्योर खत्म हो जाने दो। मतलब ग्रेजुअली यू ऑल विल अलाइन टू दिस सिस्टम, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि धीरे धीरे आप सब अपने रूल्स इसी सिस्टम की तरफ लेके जाओगे। ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें होंगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? एंड इसके अलावा 11th शेड्यूल जो बनाया गया था उसके अंदर 29 आइटम्स रखे गए हैं जिसपे पंचायत जो है वो अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका एग्रीकल्चर है, लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज हैं, हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर है। सो इस सब चीजों को यहाँ रखा गया है एंड दिस इज द 11th शेड्यूल जिसके अंदर 29 आइटम्स रखे गए हैं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? Now the last thing which I wanted to discuss with you in today's class is to difference between कुछ जो प्रोविजंस हैं इस अमेंडमेंट के, तो कुछ प्रोविजन कंपलसरी हैं एंड कुछ प्रोविजंस जो हैं वो मतलब कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। मतलब कंपलसरी का तो मतलब ये है हर एक स्टेट को फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन वॉलंटरी का मतलब है स्टेट्स की अपनी मर्जी है। इफ दे वांट टू, यस, देखो जो हमारा फाइनेंस कमीशन आता है, जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उसका काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा वो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है उस पर रिकमेंडेशन दे, ठीक है। क्लियर? So basically now we have to discuss few compulsory and few voluntary provisions. We have both, compulsory भी है, voluntary भी है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से प्रोविजन है जो कंपलसरी है, कौन से वॉलंटरी, बिकॉज यहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि बेसिकली कि कौन से प्रोविजन कंपलसरी है, कौन से वॉलंटरी हैं, तो इस पे क्वेश्चन हो सकता है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दिस विद यू कि भाई कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजन कौन कौन से हैं। सो जो आपके कंपलसरी प्रोविजन है वो ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। मतलब आपकी एक ग्राम सभा एग्जिस्ट करेगी। ग्राम सभा में बेसिकली कौन होगा आपका? देखो जो आपकी विलेज लेवल पे, जो आपकी विलेज लेवल पे पंचायत होती है ना, वो आपकी ग्राम सभा होती है। जो विलेज लेवल पे पंचायत है वो और कोई नहीं, आपकी ग्राम सभा होती है जिसमें आपके सारे रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। जैसे गांव में बोलते हैं ना कि आज सरपंच ने मीटिंग बुलाई है, तो जो ग्राम सभा होती है उसमें सारे 18 से बड़े जो वोटर होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं। वही हमारी विलेज लेवल की पंचायत होती है और उसी के हेड को सरपंच बोला जाता है, उसी के हेड को सरपंच बोला जाता है। तो सबसे पहले आपकी ग्राम सभा होनी जरूरी है, ये एक कंपलसरी प्रोविजन है। हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी लिस्ट बनाई जाएगी जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, और जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे उन्हें ग्राम सभा बोला जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंपलसरी प्रोविजन, ठीक है। नाउ द सेकेंड कंपलसरी प्रोविजन इज टू फॉलो 3-tier गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि एक बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट पे बनाऊंगा, एक बोल रहा है मैं सिर्फ गवर्नमेंट और लोकल एंड मतलब विलेज और इंटरमीडिएट पे बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, सबको 3 tier ही फॉलो करना है। दैट्स द कंपलसरी वन। नाउ ऑल द 3 levels डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ये भी एक कंपलसरी है।
मेंबर्स के लिए तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। दिस इज ऑल्सो अ कंपल्सरी प्रोविजन, दिस इज ऑल्सो अ कंपल्सरी प्रोविजन। ठीक है, चेयरमैन के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, दैट्स ऑल्सो एन कंपल्सरी प्रोविजन। ये सब अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, अगर कोई इस इलेक्शन के लिए लड़ना चाहता है तो 21 ईयर जो है वो मिनिमम एज है लड़ने के लिए। ठीक है, देन जो आपका SC ST एंड जो आपका विमेन का रिजर्वेशन है वो भी क्या है, कंपलसरी है, देना है तो देना ही है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती है। फिर जो 5 साल का टेन्योर है वो भी एक कंपलसरी प्रोविजन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी क्या है, कंपलसरी प्रोविजन है। सो कंपलसरी प्रोविजन वो प्रोविजन है जो हर एक स्टेट को मानने ही मानने पड़ेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डेविएट नहीं कर सकते हैं, हर स्टेट में ये प्रोविजन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला है ग्राम सभा, हर जगह ग्राम सभा होनी चाहिए, 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 लेवल का स्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए। तीनों लेवल के जो मेंबर्स का इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा, लोग इलेक्ट करेंगे। जो सेकंड और थर्ड लेवल है दैट इज इंटरमीडिएट एंड विलेज, तो वहां पे जो उनके चेयरपर्सन का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होगा, और जो लोकल वाले का है वो जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी वैसे होगा। 25 ईयर मिनिमम एज है इफ समवन वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन। SC ST के लिए पॉपुलेशन के बेसिस पे, विमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन कंपलसरी है देना। 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए, ये भी कंपलसरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा तीनों लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ये भी कंपलसरी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा टू रिकमेंड द शेयर ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट, बिटवीन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। सो दीज आर 9 ईयर कंपलसरी प्रोविजन। Shripad Raja, the bill which you are talking about is for reservation in parliament, parliament and state legislative assemblies। हमारा जो विमेन का 1/3 रिजर्वेशन है वो जो बिल पेंडिंग है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए है, वहां पे अभी तक हमारी विमेन्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो पंचायत में इट्स कंपलसरी, वहां पे ऑलरेडी पास हो चुका है। समझ रहे हो, 3 लेवल है ना, स्टेट सेंटर एंड लोकल, तो लोकल पे कंपलसरी है, जो बिल जो पेंडिंग है वो स्टेट और सेंटर पे है। दैट ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, वी कैन नॉट से ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की मर्जी है वो कैसे इलेक्शन करवाते हैं, साइमल्टेनियसली कराते हैं, अलग अलग करवाते हैं, बट दैट्स नॉट, मतलब बहुत माइन्यूट चीज है, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। ठीक है, तो अब हमारे कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस हैं। पहले लेट मी राइट एंड देन विल एक्सप्लेन इट टू यू। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में क्या ये नहीं आया कि जब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बिल प्रपोज करा 1989 में, तो राज्यसभा ने अपोज करा कि नहीं भाई हम तो अपनी पावर डाइल्यूट नहीं करेंगे,
तो सिर्फ 2 सालों में 1991 में ऐसा क्या हो गया कि सारी स्टेट गवर्नमेंट राजी हो गई इस बिल को लाने के लिए? ऐसा क्या हुआ कि जो 1992 में सारी गवर्नमेंट्स ने बोला स्टेट्स की, चलो ठीक है वी आर रेडी, तो कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो झोल हुआ होगा। तो मैं बताती हूँ क्या झोल हुआ। तो देखो, अब कोई भी इंसान अपनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर शेयर करने में उसे आफत आती है, या फिर अपनी फाइनेंशियल पावर। मतलब मैं चाहती हूँ, नहीं नहीं श्रीपद राजा, एलपीजी रिफॉर्म हैज नो कनेक्शन है, उसे भूल जाओ। इफ आई एम अ किंग, मैं दो चीजें चाहूंगी, मेरे हाथ से फाइनेंशियल कंट्रोल ना जाए, मेरे हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ना जाए। मेरे हाथ से फाइनेंशियल कंट्रोल ना जाए और ना ही मेरे हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जाए। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरे हाथ से दो चीजें ना जाए, बाकी तुम मुझसे कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इस बिल में क्या हुआ, इस बिल को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जो कंपल्सरी प्रोविजंस बनाए हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल पावर की कोई बात ही नहीं होती। देख रहे हो, जब आप कंपल्सरी जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उसमें कोई बात ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल पावर्स की। जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल पावर्स हैं वो स्टेट की मर्जी है, वॉलंटरी प्रोविजन है, मन करे तो दो, नहीं मन करे तो मत दो। समझ रहे हो, पंचायत बना तो दी, लेकिन अब उसे पावर देनी है या नहीं, पंचायत कैसे बनेगी, कितने टाइम के लिए बनेगी, कौन कौन इलेक्ट करेगा, कौन कौन इलेक्ट हो सकता है, कितने टाइम के लिए होगा, कितने लेवल पे होगा, तुमने सारी टेक्निकल चीजें कंपल्सरी में डाल दी कि चलो ठीक है। लेकिन जहां पावर देने की बात आई वहां पे तुम वॉलंटरी में आ गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हल्ला मत मचाओ, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपका मन करे तो इन्हें पावर देना, आपका मन ना करे तो आप इनको पावर मत देना। समझ रहे हो, तो इसीलिए पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स, मतलब जो आपके आर्टिकल 11 शेड्यूल के अंदर जो आपके 29 आइटम्स लिखे हुए हैं कि पंचायत जो है वो इस पे मतलब लॉ बना सकती है, उसमें से एक्चुअली पे वो कितने बना सकती है ये डिपेंड करता है स्टेट पे। स्टेट उसे कितनी पावर देगा, किस पे वो बना सकती है, उसके बाद ही वो डिसाइड कर सकती है, एंड दैट्स अ वॉलंटरी प्रोविजन। ऐसा नहीं बोला गया कि 29 पे अब तो लोकल गवर्नमेंट ही बना सकती है। अभी भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अगर उन्हें लगे कि चलो ठीक है हम दे देते हैं, एफिशिएंसी बढ़े, तो ही वो दे सकती है, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। सेम विद द फाइनेंशियल पावर, फाइनेंस कमीशन बना तो दिया लेकिन उसकी रिकमेंडेशंस को एडवाइजरी कर दिया, तो ये भी अल्टीमेटली स्टेट के पास है, फाइनेंशियल पावर देनी है नहीं देनी। भाई तुमने एक बॉडी बना दी, अब तुम उन्हें अगर पावर ही नहीं दोगे लॉ बनाने का, तुम उन्हें पावर ही नहीं दोगे, पैसे ही नहीं दोगे लॉ बनाने के लिए, तो कैसे काम करेंगे? तो कैसे लॉ बनाने का क्या फायदा हुआ फिर? क्या लोगों को सच में फील होगा कि नो, नाउ वी आर एम्पावर्ड, वी कैन डू समथिंग, वी कैन मेक लॉ फॉर आवरसेल्फ, वी कैन चेंज आवर लाइव्स, वी कैन, कोई फायदा हुआ? आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजें बना दी, ऊपर से सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है कि लोकल गवर्नमेंट है, अब जो सबसे नीचे के लोग हैं उन्हें भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा जब पावर ही नहीं है बनाने की, जब पावर पैसा ही नहीं है काम करने का, तो कैसे करोगे? जब लोकल गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं दिया जा रहा तो वो रोड कैसे बनाएगी, इरिगेशन कैसे लेके आएगी, कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगी? सो दैट्स द बेसिक लूप होल, और ये हमारे कहाँ पे है? वॉलंटरी में है। तो यही बेसिक आपके क्या है? ड्रॉबैक्स भी हैं। मतलब जो मैंने इतना सारा बोला ये आपके मेंस में काम आएगा, आंसर राइटिंग में, जहाँ पे वो पॉलिटी में 73rd 74 या लोकल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने को बोलते हैं, या 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए बोला जाता है, वहां पे ऑल दिस विल बी यूजफुल। तो ये तो दो चीजें हो गई। देखो SC ST वुमेन का रिजर्वेशन कंपलसरी है, लेकिन OBC का रिजर्वेशन वॉलंटरी है। स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो दे सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। और इन 3 लेवल पे MP और MLA को कितनी रिप्रेजेंटेशन देनी है ये भी स्टेट के हाथ पे। सो दीज 4 आर द प्रोविजन विच आर yes Shripad Raja, absolutely correct. That's why it is called grass without roots, because you have not empowered them with the administrative power, with the financial power. No one wants to dilute their powers, no one wants to lose their powers. That's the reason why हमारी जो local self government है still not that much efficient.
Still not, we are still not, people are feeling, related, belong to the democracy. ये एक serious issue है, समझ रहे हो? So this was the all basic which I wanted to discuss with you related to the local self government. एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बताए हैं, और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको चाहती हूँ आप इतना ही जानो, टेक्निकल चीजें में मत जाना। देखो, एमपी एमएलए, आपका एमपी हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स। एमएलए हो गया आपका मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको कुछ रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ की कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व कर सकती है, कि भाई एमपी एमएलए को रिजर्वेशन दिया जा सकता है एज अ रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया? आई होप, आई रियली, वैसे तो मेरा मतलब कोर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, बट आई एम ट्राइंग टू bring more clarity on the polity as well, and I am assuming that I am helping you all out in that. I am teaching polity also well. I am assuming that कि मैं थोड़ा सा polity भी ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ, एंड आपको सच में हेल्प मिल रही होगी लक्ष्मीकांत में प्रीलिम्स के लिए एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, दैट्स सो रिलीविंग। एंड इफ अगर आपका पूरे 1 घंटे की क्लास में अगर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है ना, तो माय पर्पस इज फुलफिल्ड, कि मैंने आपको एटलीस्ट इतना तो क्लियर कर दिया। Still, I'm saying if you are new to this Unlock UPSC channel, please do like, share, and subscribe, and press the notification bell icon so that you will be updated by the team. एंड प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एज वेल, वहां पे वी इंटरैक्ट मोर फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे तो मैं वंस इन अ वाइल क्लास लेने आती हूँ। एंड अभी मैं आपको बता दूं, क्लास इज ऑन 22 सितंबर, 8:30 ही होगी, एंड इट विल बी ऑन प्रियम्बल। वी विल बी डिस्कसिंग प्रियम्बल, उनके क्या कीवर्ड्स हैं, उनका क्या मीनिंग है, ठीक है? क्योंकि वहां पे कभी कभी सीधा सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, सोशलिस्ट से क्या मतलब है, सेक्युलर से क्या मतलब है। सो वी विल ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ दैट, and we will also study preamble is a part of constitution or not, the controversy around it. So we will clear everything. These are few topic which is very important for the prelims. Do you have any doubt? We have 5 to 6 minutes, so I can take your doubts. How's preparation going on for prelims? कोई नहीं, you will take it to the peak.
सब होते हैं सच में, ट्रस्ट मी। इस टाइम पे एवरी वन इज नर्वस। तो ये सोच के नर्वस मत हो जाना कि मैं ही नर्वस हूँ बाकी सब नहीं है। एक्चुअली में कोई दिखाए या ना दिखाए, बट एवरी वन इज नर्वस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपके पास सिर्फ 19 या 20 दिन बचे हैं पेपर के लिए। You will do good. Trust yourself. Trust your preparation. You will be doing good. You can see macroeconomics NCRT. मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी देखना, दैट्स रियली वेरी हेल्पफुल। मैंने पूरी मैक्रो कवर करी है, स्पेशल लाइव क्लासेस में है, फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन हैव द लुक। और जब आप उसमें लॉग इन करोगे तो वहां पे रेफरल कोड मांगेगा, यूज दिस कोड श्वेता G10। रेफरल कोड मांगेगा तो जस्ट यूज दिस कोड एंड अनलॉक द फ्री प्लान, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी देख लो, दैट विल बी ऑफ ह्यूज बेनिफिट बेसिक्स क्लियर करने के लिए। Okay, everyone. So I'm taking your leave now, and I wish I will see you soon on An Academy also. So just prepare well, push yourself, prepare hard. Only 20 days left. थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो, that's completely okay to do some hard work, and you will do good. Trust yourself. Bye bye everyone. See you on 22 September at the same time 8:30 in the evening. You're welcome, Sumana. Bye bye. Bye bye everyone.